Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, for the cadets. Today we have with us Vikas Manhas sir. Jai Hind sir, Jai Hind Vrinda. kindly introduce yourself sir. First of all, I will like to start with this. Ki whosoever has, you can say, came up with this idea of podcast for NCC, as we call it as Voice of Red Heckle. Yes sir. And as you just mentioned, by NCC cadets, for NCC cadets, of NCC Yes, sir. cadets. So we should be very thankful to that gentleman, whosoever has came up with this idea and then he has even implemented this. Yes sir. And congratulations to you all, whosoever are making it happen. Uh, Before coming to introduce myself, let me Yes, say sir. one thing. We as a society, we are very poor in documenting things. Yes. And the same rule applies to Indian Army also. I have heard from some old veterans that when Britishers used to go in war, first they never used the word war. They used to say that we were on expeditions. So whenever they were in expeditions, I am talking of say British Indian Army, they used to take the writer, the poet, the author, the painter along with them in the war. The idea was if they will be part of that war, observing the war from a distance, they will be in a better position to paint it, to write something on it as a poet, Yes sir. to write some poems on that. And I came to know this thing from one incident I will like to share. Once me and one very good friend of me, Hutansh, who makes the portraits of the fallen soldiers and he gift it to their families. We both were going to an armored regiment, Sindh Horse. Yes, That sir. time it was posted in Pathankot. So it's a very old Paltan, and if I recollect it rightly, they are the first one to get the tanks. Okay. Okay sir. The from horses to tanks, they were the first one to get into that. And the day they got their tanks, I think some day in the May, so we celebrate it as a armor day. So there was a painting in their mess. If I could collect it rightly, painting was painted in 1822 by Okay sir. Mike Douglas. Some very famous battle of them, and this particular unit was raised to fight against Afghans. Okay sir. And in the painter, the hero is this much of this whole wall size. Yes sir. So when we ask them how come the hero is so small, Yes sir. and you can see one full horse size painting and a soldier on that. He said while the painter was observing the scene, he was seeing it from a distance. Yes sir. And the one who is fighting at the front, he is visible this much only. Yes sir. So I started it like this ki we should congratulate the person who have came up with this idea. Now gradually with this I hope in next 5 years, 10 years, 20 years, NCC will be able to document something spectacular which will be very useful for that time generation. Yes sir. I wish if such idea would have come when I was a NCC cadet like you, so probably you would have been fortunate enough to see Captain Vikram Batra when he was a cadet, Yes sir. Captain Manoj Kumar Pandey when he was a cadet, possibly their podcasts and everything. Anyhow, that was the another era. This is another era. And when it comes to me, I belong to Jammu and Kashmir. Yes sir. And in the first year of my college, in 1994, I was fortunate enough to get enrolled in first J&K Armored Squadron. Yes sir. And so my regiment, this NCC number goes like this, JKSD 94 68840. And for 3 years, I could attend various camps uh,
for my college. Like the prominent one, I can say the first camp was National Integration Camp. We went to Mysore. From Mysore, we went to place called Medicary Yes, sir. and Kodagu district. It is the place from where Field Marshal Cariappa came. Yes, sir. And we all, the cadets, were taken to his home also. And that was first time an experience for us. And for me and for all my fellow cadets, first time we all traveled from J&K to Bangalore. Yes. When we saw in the map, अरे हम तो इतनी, we are here, we are coming, and we were coming from the northernmost part of India, yes, sir. India, that too to Bangalore. And in that trip only we could go to Talkaveri, from where the Kaveri originates. Yes, sir. That place, all the NCC cadets were taken over there, and I could make some very good friends in that camp. Yes, sir. Then afterwards, I have a lot of other ATC camps. Then I could even attend this BLC camp. I think now the name for that may have been changed. It's the basic leadership camp which comes in Delhi only. So we were 40 cadets from every directorate. Yes, sir. So I was also part of it. And one of my last camps in the third year of my NCC was at NIC in Odisha. Okay, sir. So there, during that camp, I was once dehydrated. Oh. It was little warm for us. So I was admitted at Cuttack Medical College Okay, sir. in the year 1997. 7. When I was admitted, one more cadet was admitted over there. So now we became good friends, though we were there only for a day. So his name is Amit Shrivastava. Yes. We still are very good friends. Then that time he was doing his engineering from REC Raulkela. So he had also come for that NCC camp. I had gone from J&K for that NCC camp. In the year 1999, this gentleman wrote a letter to me. When I go back to my home, I will try to get hold of that letter and send it to you. Yes, sir, definitely. The letter goes like this. I will explain just 2-3 lines. Ki now I have placed in Infosys and my first salary is, if I remember, 11,600 something. Second, he wrote, one very good friend of me who was my roommate during my Sainik school days. He has been killed in action in Kargil war. I attended his funeral. 50,000 people were there, and the friend whom he was talking about, he was no one else but Captain Manoj Kumar Pandey. They both went for SSB together. Manoj was able to get recommended for NDA. Amit was not able to get recommended for NDA. Yes, sir. Then Amit came to REC Raulkela. So that letter still is with me. And we both became friends. Why? Because we both were admitted in Cuttack Medical College for that one day. And the friendship होने का जो एक main reason क्या था? Now he was asking me so many things, this and that. He asked me, do you know the spellings of 12th? So luckily I could use the word F digit alphabet, which most of us don't do that. So I will try to send that letter to you also if I get that letter. Yes, sir. The letter written in 1999. So this is a brief introduction about me, a cadet from Fun J&K Armored Squadron, and today so lucky to have this on my chest, and thank you so much. Thank you so much, sir. Your introduction was quite commendable indeed. Sir, as you've already mentioned that you were part of the 1 J&K Armed Squadron. So what inspired you to join NCC? To be very honest and candid, there was no aspiration that time. I had gone to the college. No, I also wanted to do, चलो अब college तो आए हैं, कुछ तो करेंगे. So someone told, if you join NCC, you will get a chance to go for NCC camps. Yes, sir. So it was those days when traveling was not as easy or as frequent as it is today. So me and many of my friends, we joined NCC कि India देखने को मिलेगा.
And as I told you, we went NIC, Yes, sir. that Medicary, Kodagu. Yes, sir. We were in Bangalore. Yes, sir. Then I did so many other camps. The idea was like that. There was no information ki what else we can get out of NCC. But once we were part of NCC, we explored it. Then we learned so many things from it. But while joining, we were not knowing all these things. Yes, sir. So certainly as cadets with time we grow quite fond of this organization yes. and we develop a lot of memories. But sir, apart from just gaining memories, NCC also instills a sense of patriotism and discipline within the cadets. Right. So sir, how do you think NCC has shaped your outlook on life and service to the nation? First thing, now when you join an NCC, like in my college that time, there were only two squads of NCC. One was of infantry and one we were of armored. Yes, sir. Say 100 odd cadets in both. So say out of 5,000 boys and few girls in that college, only 200 were part of NCC. Yes, sir. So you become first little different in the college. Second, now we have to do something which others are not doing. Like every week, twice a day, we have those our practices, our drills, and all those stuff. And we get an opportunity that time whenever we used to go to our directorate or whenever we used to go to any NCC camp, कि we are interacting with army officers, seeing them, looking towards them, and then a very common question that those days was कि यार how to become an army officer. Now today, if any information I want to know or even you, Yes, we sir. have to just go on our mobile and so I am talking of 1994, 95 when all such things were not available. So you got a chance to be with Indian Army, look towards them. Then whatever a cadet has to be taught, they used to teach us. Like I remember when uh, I came to basic leadership camp to Delhi only. Yes, sir. So one JCO was with us. I can name him Subedar Bhag Singh. So he was from Mukeria at that time, possibly posted with J&K NCC. So it was those initial days of insurgency also in J&K. तो साहब used to tell us lot of things कि टेररिस्ट्स के साथ इस तरह होता है, ये होता है, जो आज तो हम पॉडकास्ट पे जाके तो बड़े लोगों के सुनते हैं, पर तब ये नहीं होता था. एंड देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्मी, हाउ वी डू दिस. फिर जब दिल्ली भी आओ तो आप बाकी कैडेट्स को भी देखते थे. जैसे J&K लैंड लॉक्ड स्टेट, हमारा बाहर इतना ज़्यादा कोई किसी के साथ कुछ था ही नहीं. पर जब हम when we used to come out, we will interact with say boys from Karnataka, boys from Rajasthan, boys from West Bengal. तो बड़ी ज़्यादा लर्निंग होती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था. और हम लोगों से ना हर एक को ये जानने को मिलता था कि J&K कैसा है, क्योंकि अब ये समझो तब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी. तो एनसीसी हेल्प, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मी इनकी एक वो जो एक फोबिया सा होता था कि 10 लोगों के सामने खड़े होकर आप कैसे बात करोगे, कभी की नहीं थी. Yes, sir. आपको दाएं मुड़ बाएं मुड़ना वो भी नहीं आता था. थर्ड, आप थोड़ा ड्रेस एक ढंग का पहनोगे Yes, कि आपको वो पैच भी लगाना है, आपको अपना हैकल भी लगाना Yes, है, sir. यू हैव टू बी लिटिल प्रेजेंटेबल आल्सो. Yes. ये भी सब चीज़ें थी. फिर आपको किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर के पास जाके अगर आप उसके कुछ भी काम शाम आपको दिया है, यू हैव टू डू दैट आल्सो. अदरवाइज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें नहीं थी. फिर जब आप फौज के सेटअप में जाते हो तो वो जब लोग आपको एड्रेस करते हैं या कुछ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक वो सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, सेंस ऑफ ये वो आ ही जाती है. फिर मोर एवर आई बिलोंग टू J&K, तो हम फौज को वहाँ पे ऑपरेट करते हुए वैसे भी देखते थे. बट एनसीसी में आके उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में वो देख के ऑफ कोर्स इट मोटिवेटेड देन वी ऑल ऑफ अस कि हम सबको भी फौज में जाना चाहिए. Yes, sir. Sir, obviously your connection with the forces is not just limited to the NCC. Right. Because in continuation to your act of service to the nation, you started visiting the families of the soldiers. So, sir, what has inspired you to start upon this journey? Yes, it all happened in the year 1994 only. I joined my NCC in 1994 only. Yes, sir. Before that,
1 year, 2 months earlier, I was in my hometown Bhadarwa, which is also known as Bhadrakashi. Yes, sir. In an ambush, we lost 7 soldiers. And those days, the mortal remains of soldiers were not transported home as they are done today. Okay, So sir. the cremation of these 7 soldiers were done in Bhadrava only. Like many other villagers, I was also part of that cremation. So when this cremation ceremony was going on, a idea or a thought came to me कि whenever such thing happen within my family or within my community, many times the cremation is delayed. And the delay is because we are waiting for someone who is coming to see one last time. Yes, sir. So I could raise this concern with a Jawan who was standing nearby to me. तो when I asked him this concern, he looked towards me. He thought कि कोई छोटा सा बच्चा है, थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल विचलित हो गया हुआ है. He tried to pacify me by saying something or the other. Somehow I was not pacified by his answers. Yes, sir. So I raised another question to him. कि sir, if we are not able to transport these to their homes, why can't we call them here, the family members? Yes, sir. Those who come today, tomorrow, day after tomorrow, we can cremate that time. Why we have to cremate today only? Yes, sir. Then again he looked towards me. He said one line to me कि जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे. So that time the what I perceived कि all these 7 families they may be from in and around Delhi. Since the situation is not conducive here, even they may not be willing to come here. The way I am interacting with you, Yes, sir. after many years I was discussing this thing with someone. तो that gentleman told me दिल्ली से उसका मतलब भारत सरकार रहा होगा, उसके घर दिल्ली में नहीं रहे होंगे. Yes, sir. Anyhow, after a while चिता को दाग लग गई. इन माई नेटिव लैंग्वेज दाग लगने का मतलब होता है चिता को आग लग गई. हम उसे आग लगना नहीं बोलते, वी कॉल इट एज दाग लगना. तो व्हेन दाग लग गया तो मैं थोड़ा ना रो पड़ा. आई स्टार्टेड क्राइंग. तो नाउ द सेम जवान विद whom I was discussing all these things, so he was just like Yes, sir. this near to me. He just holded me. He just grabbed me to just console me. So that time we both had a very good eye contact, say for 10-15 seconds. I still remember those eyes. They were big, they were red, they were full of water, but they were not crying. Yes. The tears were not rolling out. And on the other hand, my tears were rolling out. I was just crying. I was not even knowing the names of those 7 soldiers who were lying dead in front of me. So that time I learned one lesson of my life. Ki weeping is a luxury denied to many. Yes. The soldier who was standing there, he may be knowing all of them. Not maybe knowing, he will be knowing all of them. They may have trained together, served together. He may be knowing their family members also. Since he was in uniform, he was in the combat zone, he was with the weapon. His own security, my security, and the security of all those people, he was responsible for that. So he was not even able to cry. Yes. Wherever I was crying like anything. So after a while, when that all ceremony was Completed. completed, on coming back to home, an idea came to me. I should go to these 7 homes and tell them कि मैंने क्या देखा था, क्या हुआ था. Anyhow, मुझे उन 7 का कभी कुछ मिला ही नहीं. I was too small. And I started my same year graduation then from Jammu GGM Science College where I became an NCC cadet. So 5 years later, in the year 1999, when the Kargil happened, तो बॉडीज़ भी घर आना शुरू हो गई थी. मीडिया भी थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा था. एंड मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था. Yes. So July 5th, 1999, we lost Grenadier Udayman Singh. He was from Jammu only, 18 grenadiers on the final assault of Tiger Hills. Yes, sir. So his was the first family which I visited in the year 1999. फिर second, third, fourth, but इस तरह चलते रहे. Sir, definitely the kind of stories that you must have come across must have been heartbreaking for many people. And the fact that you continue to do so till date
means a lot, not just to us as citizens, but also definitely to the families who are already suffering through a lot. So, sir, out of all those stories, do you think there is any that stands out to you the most and something that you would want to share with our audience? ये बड़ा डिफिकल्ट आप सवाल मेरे लिए कर देते हो कि वन स्टोरी विच स्टैंड्स द मोस्ट. Yes, sir. फॉर मी एवरी स्टोरी इज इक्वल. Yes, sir. कि मेरा ये मानना है, आई से वन दिस लाइन एंड इवन आई राइट एट टाइम दिस लाइन, एवरी सोल्जर हैज़ ए स्टोरी टू टेल provided he has a listener. Yes, sir. Absolutely. Provided he has a Listener. listener. The unfortunate part of our society, even today, we run after only few names. Hmm. We run after gallantry awards, we run after big names. Yes, sir. But as I told just a while ago, every soldier has a story to tell, provided he has a Listener. listener. मैं एक छोटी सी एक बात कहता हूँ. अभी December 1st last year, there was a big function happening in Bangalore, organized by Major Akshay Girish Memorial Trust. He was a engineers officer. We lost him 8 years ago fighting terrorists in Nagrota. Yes, sir. तो his parents have made up this trust, और ये एक फंक्शन हो रहा था जो हर साल दिसंबर में होता है. तो बेंगलोर में हो रहा था. तो one former army chief was one who was part of that. One air chief was there. Then present commandant of this Madras engineering group, he was there. Many senior officers, NCC cadets, military school Bangalore students. It was a huge gathering over there. I was given say 10 minutes to talk on a subject. So this particular thing I narrated there first time, and I am narrating say on the podcast possibly for the first time. Last year I got an opportunity to go to Batalik. Batalik is in Kargil, where Captain Manoj Kumar Pandey fought. Yes, sir. Just to give a reference to we all people. So when I was there in the month of October, November, so as I was there being hosted by the soldiers posted over there, Yes, I sir. was knowing no one else. So I could hear them कि अभी ना हम सबको पोस्टों पे चढ़ा रहे हैं. The induction is going on. Yes, sir. तो मैंने भी उनसे पूछा ये इंडक्शन क्या होता है. दे सेड कि ये जो हमारी फॉरवर्ड पोस्टें हैं ये अभी थोड़े दिनों में कट ऑफ हो जाएंगी. मैंने पूछा क्या हो जाएगा. दे सेड कि जो ये सड़कें हैं, कहीं तो थोड़ी सी सड़क है गाड़ी की, कहीं तो पैदल चलने की सड़क है, जब बर्फ पड़ेगी ये सब कट ऑफ हो जाएंगी. तो फिर मैंने कहा फिर क्या होगा. देन दे सेड कि जो सोल्जर यहाँ पे डिप्लॉयड है, फिर वो 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने नीचे नहीं उतरेगा. नीचे नहीं उतरेगा जब तक कि उसके उस एरिया का बर्फ मेल्ट ना हो जाए. अब मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या बात कर रहे हैं. अब मैंने कुछ पोस्टें उनकी दूर से जैसे दिखी भी थी, जैसे दे यूज्ड टू से, वो देखो वो सामने पहाड़ी पे छोटा सा वाइट दिख रहा है. मैं कह रहा हूँ यस, वो एक हमारी पोस्ट है, ये एक हमारी पोस्ट, और वो सामने ना ये पाकिस्तान की पोस्ट है. मतलब वट एवर एज ए सिविलियन दे कुड शो. अब मैं वो सब देख रहा हूँ और मैं कुछ दिनों से वहाँ पे रह रहा हूँ उनके साथ. तो मैंने कहा अब ये 5 महीने 6 महीने और एंड आई कुड सी कि ये लोग आज इंडक्ट होंगे, ये होंगे. तो मैंने एक चीज़ जो वहाँ ऑब्जर्व की, अब आपने कहा ना कहानी, तो ये कहानी हर एक की है. Yes, sir. अब एक ह्यूमन की या आपकी और मेरी बेसिक नीड क्या है जिसके बिना हम कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकते. हवा. Yes, sir. हवा है ना, Yes, sir. वहाँ पे हवा भी नहीं है. दूसरी नीड क्या है, पानी, जो आपने मुझे आते ही पानी पिलाया, Yes, sir. वहाँ पानी भी नहीं है. ये सब लड़के वहाँ 5-6 महीने 7 महीने जो बर्फ उसको मेल्ट करेंगे और पिएंगे जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है. तीसरा खाना, वहाँ खाना भी नहीं है. उन सबके पास टिंड पैकेट है. टिंड फूड इज नॉट गुड फूड. यानी कि बेसिक चीज हवा, पानी, खाना, वह तीनों नहीं है. Yes, sir. और अगर मैं अगली बात करूं, हम इलेक्शंस में अक्सर एक बात होती है बिजली सड़क. वहाँ ना बिजली है ना वहाँ सड़क है, कुछ भी नहीं है. Yes, sir. एक और चीज जो कुछ साल पहले तक तो रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी बात करूं, इंटरनेट.
अगर आप मेरा ही इंटरनेट मेरे से छीन लो, शायद एक दिन के बाद आपको मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ये बड़ा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है, इसको चेक किया जाए। अब इमेजिन करो एक लड़का जिसने पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल में अपनी यूनिट ज्वाइन की है और जिसकी यूनिट इसी साल उस सेक्टर में आई है, जो पहली बार ऊपर जाएगा वो आपसे 3-4 साल बड़ा होगा, आपका कुछ सीनियर होगा। अब सडनली ही विल रियलाइज कि अब मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने। और जहां पर वो बैठा है उसके थोड़ी सी आगे कुछ मीटर की दूरी पे एक हॉस्टाइल एनिमी है ना, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ करेगा ना। तो आप सोचो, द सोल्जर जो राइट नाउ जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी वहां पे बैठा होगा। मतलब तब से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अब उसको 4 महीने वहां पे हो गए हैं। और हमें लगता है आजकल तो लड़ाई हो ही नहीं रही, ये तो आराम से बैठे हैं, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, हम इनको कैंटीन फैसिलिटीज दे रहे हैं, दिल्ली में वो आके गोल्फ खेल रहे हैं। हम तो दिल्ली में फौज देखते हैं ना, पर हम ये नहीं देखते कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले ये कहां से आया होगा। तो इससे बड़ी कहानी मैं क्या सुनाऊं आपको। और जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो भी लड़का वहां से 5-6 महीने के बाद नीचे आएगा, बहुत सारे उसमें से कुछ परमानेंट फिजिकल डैमेज लेके वापस आते हैं, जो कहीं कागज में शो भी नहीं होते, क्योंकि गोली तो चली नहीं, बुलेट तो फायर हुई नहीं। बट मैंने आपको बताया, आप उस जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हवा भी नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ खाना भी नहीं है, जहाँ सड़क भी नहीं है, जहाँ बिजली भी नहीं है, और अगर मैं आपकी और मेरी उससे बात करूँ, वहाँ इंटरनेट भी नहीं है, और सामने आपके एक हॉस्टाइल एनिमी है। और ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, और जब मैंने ये कहानी वहाँ बेंगलोर में इसी तरह सुनाई, तो मेरे बाद फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अब उनको भी थोड़ी सी बात करनी थी, तो उन्होंने बात मेरी इसी बात पे शुरू की कि विकास वाज टेलिंग द डिफिकल्ट कंडीशंस, ये तो आज की हैं। इमेजिन व्हेन आई वाज देयर, तब तो ये कुछ भी नहीं था जो आज कुछ उनके पास है। जैसे मैं बटालिक, जब खालूबार के आसपास उस रीजन को मैंने देखा, मैं वहाँ गया, तो मुझे ये पता चला कि जब ये लड़ाई हुई है तो वहाँ सड़क भी नहीं थी। ऑल दिस सोल्जर्स फ्रॉम 111 GR या ऑल दिस सोल्जर्स फ्रॉम 1 बिहार रेजिमेंट, ऑल दिस सोल्जर्स फ्रॉम 12 जैकलाई, जो ये सारे वहाँ पे थे, इनको ना जाने कितना तो पैदल चल के 4-5 दिन ये पैदल चलते थे, उसके बाद एनिमी के साथ आपका कांटेक्ट हो पाता था। तब तक आपका कांटेक्ट भी, तो सोचो आपकी एनर्जी तब तक तो रहनी चाहिए थी। और 22 ग्रेनेडियर्स वाज आल्सो इन दैट सेगमेंट ओनली। तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक, जैसे आपने कहा कि एक एनेक्डोट सुनाइए, तो मैं वो दिल्ली के साथ, बटाली के साथ और हर एक के साथ जोड़ता हूँ। 12 जैकलाई इस लड़ाई से पहले सियाचिन में थी, और 12 जैकलाई की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी, और 12 जैकलाई में थे कैप्टन अमोल कालिया। ही वॉज फ्रॉम नांगल ओनली, हिमाचल के थे, एंड उनके पापा टीचर थे। और जब ये 12th में थे अमोल कालिया, तो जस्ट लाइक हर घर में डिस्कशन होता है ना कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कैरियर को लेके, उनके घर में भी हुआ था। तो अमोल वाज वेरी कीन कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल गो टू डॉक्टर। तो उसके पापा ने कहा ठीक है हम डॉक्टर बनेंगे, पर इंडिया में डॉक्टर बनना इज नॉट दैट ईजी। और मैं तो 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतनी तो तब मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं थे, इतनी सीट्स भी नहीं थी। तो हिज फादर सेड कि एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए इन केस अगर हमारा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो। ही सेड कि ठीक है फिर हम इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग इज ए सेकंड ऑप्शन, एक थर्ड ऑप्शन भी रख लेते हैं अगर उसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि इट हैज़ टू बी कम्पिटिटिव। तो उन्होंने कहा, इन्हीं के पापा ने कहा थर्ड NDA रख लेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी रख लेंगे, क्योंकि सिलेबस तो तकरीबन सभी का सेम ही है। यू प्रिपेयर फॉर मेडिकल, उसी में इंजीनियरिंग का भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट उसी से हमारा NDA का भी हो जाएगा।
तो दे सेड ओके, अकॉर्डिंगली उन्होंने तीनों फॉर्म भरे। और टू कट शॉर्ट इट, एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा आया कि अमोल कालिया हैज़ joining letter for Medical College Shimla. He was selected for Medical College Shimla. He has joining letter for Regional Engineering College. तब NIT नहीं होता था, तब REC बोलते थे, जिसको हम आजकल NIT Yes, sir. बोलते हैं। NIT हमीरपुर का भी उसके पास ज्वाइनिंग लेटर था। एंड एट द सेम टाइम ही हैज़ ए ज्वाइनिंग लेटर फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पूना में था। Yes, sir. अब जब ये तीनों थे, अब इनके पापा हैं जो मुझे सुना रहे थे, ही सेड कि ना मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता था और बच्चों को फौज में जाने के लिए बड़ा मोटिवेट करता था। तो मुझे लगा अगर मैं अपने बेटे को अब यहाँ भेज दूंगा मेडिकल कॉलेज, सब कहेंगे अपने बच्चे की बारी आई उसको तो यहाँ भेज दिया। तो ये सेड कि मैंने अमोल को बुलाया, मैंने कहा नाउ यू हैव ऑल द 3 चॉइसेस ऑफ योर्स, आपके पास ही हैं। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस, लेट्स रिवर्स द चॉइस, यू गो टू NDA फर्स्ट। तो ही सेड ओके। Luckily, Amol then went to National Defense Academy. He became the first from his village to go to NDA. 3 साल उन्होंने NDA में अपना ट्रेनिंग किया। He came to IMA, Indian Military Academy. वहाँ से वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद he got inducted into 12 Jackali. Sir, in continuation with the previous story, are there any similar stories that you would like to share? हाँ, स्टोरीज अब मैं आपको कौन सी स्टोरी सुनाऊँ, यही एक बड़े एक असमंजस सा हो जाता मेरे लिए। चलो मैं एक आउट ऑफ वे छोटी सी एक बात करता हूँ, फिर शायद स्टोरी में से कोई स्टोरी निकले। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक लाइव किया था कि मैं आज 2 ट्विन सिस्टर्स और 2 ट्विन डॉटर्स को मिलने जा रहा हूँ। कोई 1 हफ्ते पुरानी बात है, ये हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 4-5 दिन पहले हम कार में जा रहे थे। आई कुड जस्ट, और मेरे साथ जो मौलिक शर्मा बैठे थे वो भी NCC कैडेट हैं। तो आई मेट हिम व्हेन ही वाज NCC कैडेट, और मैं उसके कॉलेज के बड़े सारे उनको मिला। ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, तो ही वाज ड्राइविंग द कार, तो हम जा रहे थे। और मैंने सबको ये भी पूछा कि अगर कोई मुझे बताए कि हु आर दीज 2 ट्विन सिस्टर्स जिनको मैं मिलने जा रहा हूँ, एंड हु आर दीज 2 ट्विन डॉटर्स, तो मैं आई विल गिफ्ट हिम समथिंग। ट्विन सिस्टर्स, डॉटर्स, फिर भी ये सिस्टर्स फिर भी किसी ने गेस की, पर डॉटर कोई नहीं गेस कर पाया। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं गुड़गांव से निकला था, तब मैं, मौलिक और हमारे साथ एक और थे। तो हम जिंद जा रहे थे। जिंद इज इन हरियाणा, हिमाचल, ये क्या बोलते हैं, कैप्टन पवन के घर। कैप्टन पवन वॉज इन 10 पैरा SF। वी लॉस्ट हिम इन दिस मंथ ऑफ फरवरी ओनली। इन 2016 जब पंपोर में एक EDI बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसी लड़ाई में हमने कैप्टन तुषार महाजन को भी खोया, जो 9 पैरा SF से थे। और कैप्टन तुषार के जो बडी थे ओम प्रकाश लांस नाइक, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम 9 पैरा SF। वी लॉस्ट हिम ऑल्सो। और कैप्टन पवन और कैप्टन तुषार के जो लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस थे ना, वो बहुत वायरल हो गए। शायद आपको पता है, नहीं सर। अब फरवरी का महीना था, ठंड थी, कश्मीर बहुत ठंडा होता है। तो पवन ने इस तरह लिखा था, और उन दिनों हरियाणा में जाट आंदोलन चल रहा था आरक्षण के लिए। इंडिया में देखो हम अपने आप को बैकवर्ड खुद ही बनाना चाहते हैं कि हमें आरक्षण दो। तो पवन का जो वो था, लाइन थी, वो इस तरह की थी, किसी को आरक्षण चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे था, हमें तो बस अपनी रज़ाई चाहिए। और उसकी वो फोटोग्राफ भी थी, वो रज़ाई लेके ऐसे बैठे हैं। दैट वाज हिज लास्ट, एंड नेक्स्ट डे वी लॉस्ट हिम। और तुषार का जो लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस था वो ये था कि सो जाएगी लिपट कर अलमारी में, देशभक्ति है साहिब, तारीखों पे जागती है। सो जाएगी लिपट कर तिरंगे के साथ अलमारी में, देशभक्ति है साहिब, तारीखों पे जागती है। We lost him also in that operation. और पवन was the only child of his parents. Only child of his parents. तो he was commissioned in 7 Dogra. Then he opted for paras. He came into 10 para SF.
तो आफ्टर लूजिंग हिम अंकल आंटी डिसाइडेड टू हैव हिज सिबलिंग्स. तो इस इतनी लेटर ऑन एजेस पे, क्योंकि आंटी वॉज दैट टाइम मदर ऑफ ए पैरा ट्रूपर, Yes, sir. तो उनके 2-3 सालों के बाद शी वॉज ब्लेस्ड विद ट्विन सिस्टर्स, दिव्या और दिव्यांशी. Okay. तो मैं उन दोनों को मिलने देखने जा रहा था. एंड April 4th इज देयर बर्थडे Okay. जो होता है. तो मैंने इस बार उन दोनों से पूछा कि बहन मैं बर्थडे पे आऊँ. वो कहती हैं हाँ आओ. तो मैंने पूछा गिफ्ट क्या लाऊं आपके लिए. सो दे हैव सेड टू मी, हमारे ना वो रिमोट वाली कार लेके आना, वो भी पिंक कलर की. दे आर वेरी क्लियर. तो मैं आप सबको भी कहूँगा कि लेट्स वी ऑल जॉइन टुगेदर ऑन April 4th, गो देयर, हैव ए बिग सेलिब्रेशन. Definitely, sir. We should. और दिल्ली से वहाँ जाना दूर भी नहीं है. और एक बड़ी सी पिंक कार ले चलते हैं रिमोट वाली. दे वर वेरी क्लियर, पिंक कार चाहिए हमें, रिमोट वाली, वही लेके आना. तो फिर सेम डे वाइल कमिंग बैक वी केम टू रोहतक, जो हमारे रास्ते में था. एक बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट थे गजेंद्र सिंह, Yes, sir. असिस्टेंट कमांडेंट गजेंद्र सिंह. तो शादी के लगभग 15 साल तक उनके घर में कोई संतान नहीं थी. तो 15 साल के बाद उनके घर में 2 बेटियां पैदा होती हैं. एंड ही कुड सी दम ओनली वंस या ट्वाइस. और उसके लगभग 5.5 महीने के बाद वाइल ही वॉज पोस्टेड इन सम नक्सल अफेक्टेड एरियाज, ये वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक इंडियन रेलवेज बिछा रही थी, वो बिछाने नहीं दे रहे थे. तो ही वॉज डिप्लॉयड देयर इन वन ऑफ द लैंड माइन ब्लास्ट. वी लॉस्ट हिम. तो उस दिन फिर मैं दिव्या, दिव्यांशी, वर्तिका और वंशिका, तो मैंने ये सबसे पूछा था कि मैं आज 2 सिस्टर्स को, पवन की तो सिस्टर्स हो गई और ये 2 डॉटर्स हो गई, कि मैं इनको मिलने जा रहा हूँ. फिर जब मैं रोहतक में ही था, सो देन आई थॉट कि आई शुड मीट वन मोर फैमिली. तो मैं कैप्टन दीपक सिंह थे, दीपक शर्मा थे. ही वॉज फ्रॉम सिग्नल्स, वो आरआर में डिप्लॉयड थे. वी लॉस्ट हिम इन पुलवामा. ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. एक उनकी सिस्टर हैं, तो ही इज़ आल्सो डेकोरेटेड विद कीर्ति चक्रा. फिर हम शाम को अंकल आंटी से मिले. उससे पहले मैं अंकल आंटी को कभी नहीं मिला था. सिर्फ मेरे पास एक उनका मोबाइल नंबर था जो किसी ने तो मुझे दिया था. जब मैंने ऐसे समझो अंकल से बात की कि हम ऐसे ऐसे आपसे मिलना चाहेंगे, हम उनके घर गए. रात को लगभग 8:30 बजे पहुँचे कि चलो थोड़ी देर मिलते हैं. आंटी ने उस वक्त हमारे लिए दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चपाती बनाई. हम कह भी रहे आंटी, नहीं, होल फूड वाज कुक्ड. उससे पहले आंटी ने चाय बनाई, बहुत कुछ बनाया. हम लगभग 11 बजे, 10:30, 11 बजे वहाँ से निकले. और एक दीपक का एक वीडियो है, जब शायद वो नया नया लेफ्टिनेंट बना होगा ना, तो घर में ही है, शायद उसकी सिस्टर बैठी है उसके साथ, 2 लड़कियां हैं, एक शायद उसकी कज़न है, मैं तो जानता नहीं. एंड ही सिंगिंग द सॉन्ग, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. तो जब मुझे वो वीडियो, अब ना जाने कहाँ से मुझे मिला, तो जब मैंने वो पोस्ट भी किया था तो मैंने यही लिखा था कि चलते चलते ही दीपक हम सबको अलविदा कहेंगे. तो अंकल आंटी अब अकेले रहते हैं. तो अंकल ने मुझे एक चीज़ कही थी कि यहाँ पे दीपक का स्टैचू भी लगा है. हम 10-15 हमने एक दीपक के नाम पे एक ट्रस्ट भी बनाया है. हम एक उसके बलिदान दिवस पे, मार्च में आएगा शायद उसका बलिदान दिवस, हम एक फंक्शन भी करते हैं, ये करते हैं. पर क्या ये मुझे करना चाहिए? ही वॉज वेरी राइट इन सेइंग दिस थिंग. मुझे ही क्यों करना है? समाज क्यों नहीं करता? सोसाइटी क्यों नहीं करती? ही इज़ वेरी राइट इन आस्किंग दीज थिंग्स. अभी जैसे मैं जम्मू जा रहा हूँ और मेरे जम्मू जल्दी जाने का पर्पज़ ही यही है. कैप्टन तुषार का एक बलिदान दिवस जो 20 फरवरी को आता है, हर साल वो हम मनाते हैं. हम मीन्स अंकल आंटी मनाते हैं, हम तो जस्ट थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. वो अंकल आंटी को क्यों मनाना है? वी एज ए सोसाइटी, एनसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों नहीं इस चीज को अडॉप्ट करती? एनी हाउ दिस ईयर 23rd of February
और 20 दिनों के बाद तुषार का एक फंक्शन होगा, उधमपुर में होगा. आई इनवाइट यू ऑल, और जो भी कोई सुन रहा है, ही इज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दैट. बट माई क्वेश्चन इज, वाई दीज फैमिलीज हैव टू देन ऑर्गेनाइज ऑल दीज फंक्शंस? वाई नॉट? आपका एक एनसीसी का कैडेट उधमपुर में भी है, सब कुछ है, उनको करना चाहिए ना. दीपक शर्मा के पापा ने मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सोसाइटी कहती कि हम आपके साथ हैं, कहाँ पर है? जब तक मैं इनिशिएटिव ना लूँ, जब तक मैं एफर्ट्स ना डालूं, उसकी जो वो प्रतिमा है वहाँ कोई साफ, उसे कोई साफ भी नहीं करता. देन ही सेड कि मैंने अपने पैसों से एक समवन आई हैव हायर्ड जो रोज वहाँ पे जाता है और उसको मेंटेन करता है. इस पे छोटी सी बात एक और कहूँगा मैं आपको. कारगिल में कैप्टन ये सौरभ कालिया का नाम आपने सुना होगा. ही वॉज द फर्स्ट हु वेंट, जो गए बजरंग पोस्ट पे. उनका पेट्रोल वापस ही नहीं आया. मैं कहानी कट शॉर्ट कर रहा हूँ. तो जब वापस ही नहीं आया तो उन्हें ढूंढने कैप्टन अमित भारद्वाज वेंट. जब कैप्टन अमित भारद्वाज बजरंग पोस्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको ये पता चलता है कि उनके ऊपर हैवी फायर 3 साइड से आता है. तो ये अमित भारद्वाज अपने सीनियर को ये बता पाते हैं कि हम पे 3 साइड से फायर आ रहा है. पॉसिबली यहीं से ही सौरभ को अबडक्ट किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड का कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है. तो उनके सीनियर अमित भारद्वाज को वापस आने को बोलते हैं. तो अब अमित भारद्वाज कुड हैव इजीली कम डाउन, बट समवन हैज़ टू स्टे देयर, उनको कवर फायर देने के लिए. तो अमित भारद्वाज किसी भी जवान को वहाँ खड़ा कर सकता था, बट ही स्टूड हिमसेल्फ कि मैं रुकता हूँ, आप सब जाओ. जो उसका बडी था, जैसे एनसीसी में भी बडी होता है, तो उसका भी बडी था, हवलदार राजवीर सिंह, ही आल्सो स्टूड देयर. अब अमित उसे कह भी रहा है कि आप जाओ यहाँ से, आई विल हैंडल इट. राजवीर नहीं जा रहा. दे बोथ न्यू कि यहाँ पे रहना इज नॉट सेफ. राजवीर स्टिक, आई विल नॉट लीव यू. और ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों की आपस में थोड़ी सी कहा सुनी भी हुई होगी. अमित भारद्वाज ने राजवीर को ये भी कहा था कि अगर मैं तो तुम्हारा अफसर हूँ, तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे. तो ही सेड कि अगर जिंदा बचे तो नीचे आके आपने जो कार्रवाई करनी होगी कर लेना, अगर नहीं बचे ऊपर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी. देन दे बोथ हैव स्टूड देयर. बाकी सब लोग नीचे उतरे हैं. उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह तक इंडियन आर्मी को आने में अराउंड 55-60 डेज लगे. और जब हमारी आर्मी वहाँ पे पहुँची है, when these two bodies were recovered, they both were still holding their weapon and with multiple bullets in their skull. क्योंकि वैसे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ना, चट्टान पे जहाँ कहीं पे भी उन्होंने पोजीशन ली होगी. बट वी नेवर टॉक अबाउट कैप्टन अमित भारद्वाज, वी नेवर टॉक अबाउट कैप्टन ये सारी हवलदार राजवीर सिंह. उसको उसका ऑफिसर बोल भी रहा कि आप जाओ, बट ही स्टिल देयर कि नहीं, इट्स माई ड्यूटी टू बी विद हिम. और अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, कहानी को मैं आपको बताऊं. अब जब ये सौरव का मिसिंग हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर आ गई, लेफ्टिनेंट एंड 5 जवान्स मिसिंग. अब मैं सौरव की बात अभी नहीं करूंगा. अब सबको पता चल गया. अब अमित भारद्वाज, ही वॉज फ्रॉम जयपुर. उसके पापा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर थे. ही वॉज ऑल्सो द ओनली सन. उनकी एक सिस्टर जो उस टाइम मैरिड थी. अब उसने देखा कि यार 4 जाट का ही सौरव इज मिसिंग, तो हमारा भाई भी तो 4 जाट में ही है. तो दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट 4 जाट कि अमित से बात कराओ. 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो कभी बोल रहे हैं वो आगे है, पीछे है, नेटवर्क में नहीं है. एक नेगेटिविटी सी तो आनी शुरू हो जाती है ना. एंड एक दिन, बल्कि इस एपिसोड के लगभग 3-4 दिन के बाद एक घर फोन आता है और सुनीता दीदी, मैं अमित भारद्वाज की सिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो फ़ोन उठाती हैं और सामने से जो कोई भी फ़ोन पे बात कर रहा था वो इस तरह बोलता है कि दीदी मुझसे मत पूछना मैं कौन हूँ, बट आई हैव सीन द बॉडी ऑफ अमित भारद्वाज. यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर पेरेंट्स फॉर इट. जब भी हम उसको रिकवर करेंगे हम उसे घर लेके आएंगे. अभी वो जहाँ पे पड़ी है वो फायर रेंज में है, हम उसको रिकवर नहीं कर पा रहे. कोई ना कोई इंडियन आर्मी का ही सोल्जर रहा होगा. नाउ द सिस्टर न्यू अमित इज नो मोर. बॉडी आने का कोई चांस नहीं है, पता नहीं कब आए कब ना आए. उसके बाद बॉडी घर 56 डेज के बाद आई है. कितने? 56 डेज के बाद.
अब यू आर ए गर्ल, हम अक्सर एक मजाक मजाक में कहते हैं लड़कियों को कोई बात मत बताना, वो सब बात सबको बता देंगी। वी सेड ना कि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। सुनीता दीदी ने ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने तक रखी फॉर नेक्स्ट 50 डेज। उन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, उन्होंने किसी को नहीं बताया। और घर में वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे विद एवरी पासिंग डे घर में टेंशन तो बढ़ रही है। अब मम्मी एक जैसे होता ही है मम्मी, अब वो किसी ने कहा ये पंडित के पास जाओ, टिपड़ा लेके जाओ, जन्मपत्री लेके जाओ, वो जा रही हैं। सुनीता भी साथ जा रही है, अब वो तो साथ ही जाएंगी। वहाँ पंडित जी ने कुछ कुछ कहा, घर में ये हवन कराओ, ये पूजा कराओ, ये मंदिर में जाओ, वो सब हो रहा है। शी इज डूइंग ऑल दैट नोइंग कि ये मैं जो कर रही हूँ इसका कोई पर्पस नहीं है, बट मुझे किसी को बताना नहीं है। फादर मस्ट बी सेइंग कि यूनिट में फ़ोन करो, ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो कि क्या इन्फॉर्मेशन है। शी इज़ डूइंग ऑल दैट। तो मैं चाहूँगा कि शी शुड आल्सो बी समडे पार्ट ऑफ दिस एज ए। एक लेडी कितनी स्ट्रांग हो सकती है, कितनी पावरफुल हो सकती है, क्या हो सकती है। सुनीता दीदी इज एन एपिटोम फॉर दैट, कैप्टन अमित भारद्वाज। फिर उसके जब 56 दिनों के बाद, 55-56 दिनों के बाद जब इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली इनको कॉल किया कि द बॉडी हैज़ बिन रिकवर्ड, हम बॉडी लेके आ रहे हैं, देन शी टोल्ड एवरीवन कि ये ऐसा ऐसा है। और कहानी मेरी कहाँ से शुरू हुई थी कि दीपक के पापा ने क्या कहा। फिर जब अमित भारद्वाज की बॉडी जयपुर आई है, वो इनिशियली अल्बर्ट हॉल, एक जयपुर में एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह है, वहाँ पे वो रखी गई। होल जयपुर वॉज देयर टू पे हिम होमेज। तो तब दीदी के दिमाग में ना जाने कैसे आया कि अगर हम इसका क्रिमेशन ग्राउंड पे करते हैं, वहाँ पे तो इतनी जगह भी नहीं होती। सो शी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर कि इसका क्रिमेशन पब्लिक पार्क में किया जाए, ग्राउंड में किया जाए। चीफ मिनिस्टर डिनाइड। पर दीदी भी बड़ी स्ट्रांग थी। शी सेड टू द चीफ मिनिस्टर, अशोक गहलोत वाज द चीफ मिनिस्टर दैट टाइम, कि अगर इसका क्रिमेशन होगा तो पब्लिकली होगा, ग्राउंड में होगा, अन्यथा आप बॉडी उठा के तो दिखाओ। जयपुर आल्सो सपोर्टेड हर लाइक एनीथिंग। द चीफ मिनिस्टर हैज टू बकल डाउन। फिर इनके घर के पास एक पार्क था म्यूनसिपैलिटी का, उसमें उनकी मेयर का भी बड़ा रोल था। उन सब ने वहाँ पे फटाफट एक मेक शिफ्ट पायर वो बनाई गई, वहाँ पे अमित भारद्वाज का क्रिमेशन हुआ। फिर वहीं पे ही एक छोटा सा मेमोरियल उसका बनाया गया। और अंकल ओपी भारद्वाज, जो इनके पापा थे अमित भारद्वाज के, वो हर दिन सुबह रोज सबसे पहले उस ग्राउंड में जाते हैं, उस मेमोरियल को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर अपना बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। आज से लगभग 6-7 साल पहले जब मैं जयपुर गया, तो मैं भी अंकल के साथ गया उस दिन मॉर्निंग उनके वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गया तो अंकल स्टार्टेड द प्रोसेस। वो घर से गीला कपड़ा लेके जाएंगे, धूप बत्ती लेके जाएंगे। तो पहले मुझे लगा कि मैं क्लीन करता हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, लेट मी रिकॉर्ड इट। मैंने वो पूरा रिकॉर्ड किया, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको भेजूंगा। अब मेरा इतना सा ही सवाल है, व्हाई ही हैज टू क्लीन दिस? व्हाई नॉट जयपुर कम्स एंड क्लीन द मेमोरियल ऑफ कैप्टन अमित भारद्वाज? अब मेरी बात समझ रहे हैं? और जयपुर में जितने भी कम होंगे, 2-2.5 हज़ार एनसीसी के कैडेट्स भी तो होंगे। जयपुर इज सच ए बिग। अगर हम एनसीसी को ही इसमें इन्वॉल्व करें, एक कैडेट की बारी जिंदगी में एक ही बार आएगी। कितनी बार आएगी? एक ही बार आएगी। भाई कॉन्ट, जैसे अगर आप ही की जिम्मे आती है, आप जाइए एक दिन, उसको क्लीन करिए, उसको अच्छे से रखिए, वहाँ फूल माला करिए, अंकल आंटी विल फील वेरी हैप्पी। हैप्पी शायद इज नॉट द राइट वर्ड, बट यार मेरे बेटे ने ना इन लोगों के लिए जान दी है, देखो ये कितनी उसकी वो कर रहे हैं। बट आज भी वो अगर अंकल ही क्लीन कर रहे हैं, सो दिस मीन्स वी एज ए सोसाइटी, एनसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन Are lacking. is lacking something. Yes. अब और क्या बताऊँ मैं आपको, पूछिए। सर क्लियरली एक सोल्जर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड सिमिलरली वी सी कि उनकी फैमिलीज़ में भी बहुत सारी दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स. राइट। But sir, my main question is that what has been your key takeaway from all of this? What is something that has motivated you to continue to do this? ये सवाल ना, जैसे आपने मुझे मोटिवेशन की बात की,
You need motivation when you have to achieve something. You need motivation when you have an objective in mind. You need motivation when there is some target or goal. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just Thanksgiving. कि मैं उस दिन मैं कैप्टन पवन के घर गया तो मैंने क्या ही किया. आई वॉज लाइबिलिटी ऑन देम. उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, मैंने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेला, मैं घर वापस आ गया. उसके बाद जैसे मैंने बताया मैं कैप्टन दीपक शर्मा के घर गया शाम को. आंटी आउट ऑफ वे, उन्होंने मेरे साथ और 2 जन भी थे. आंटी ने खाना बनाया, सब्जी अरेंज की, सब कुछ किया ना. तो बट जो मुझे ऐसा लगा कि अंकल आंटी को शायद बहुत अच्छा लगा. कोई ऐसे किसी के घर जाता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, करता ही नहीं है. तो देयर इज नो मोटिवेशन फॉर दिस. अब बस मुझे तो ये ऐसा लगता है कि इट्स ए वे ऑफ माई लाइफ. मुझे जहाँ भी पता चलता है, अगर मान लो आप भी कोई बता दें कि मैं भी किसी एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ या कोई ऐसा घर है जो मैं जानती हूँ, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा मुझे ले चलो. करना हमने कुछ भी नहीं है. बट फिर मैंने वही एक चीज़ कही, अंकल अमित भारद्वाज का मेमोरियल तो रोज़ क्लीन कर रहे हैं, बट अगर हम लोग क्लीन करना रोज़ शुरू कर दें, उसकी एक अलग बात होगी. दीपक के पापा ने भी किसी को हायर किया हुआ है जो वो कर रहा है, पर अगर रोहतक के लोग बोलते हैं अंकल जी आपने क्यों हायर किया हुआ है, हम 10 15 20 दोस्त हैं, हम आके कर लिया करेंगे. आप समझ रहे हो? तो अब 25 साल से जब आप कोई एक कंटिन्यूसली कोई एक चीज़ करते रहो ना, फिर वो मोटिवेशन से आगे हटके एक वे ऑफ लाइफ टाइप बन जाता है. और मुझे ये लगता है कि मुझे इनके पास जाना चाहिए. इनकी कहानियाँ, जैसे मैंने आपको जो भी आज छोटी मोटी कहानियाँ सुनाई, ये सारी मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है. मैंने किसी मैगजीन से नहीं पढ़ी, मैंने किसी आर्टिकल से नहीं लिया. जो सुनीता दीदी ने मुझे सुनाया, जो दीपक के पापा ने मुझे सुनाया, जो मैंने देवराज अंकल तुषार के पापा से सुना, जो मैंने पवन के घर जाके सुना, या मैंने जो तेजेंद्र सिंह जो कमांडेंट साहब थे जो उनके घर से मैंने सुना, बस यही कहानियाँ हैं. तो इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई टेक अवे नहीं है. तो मैं सबको ये बोलता हूँ, जैसे मैं आज आपको भी ये बोल रहा हूँ कि अब सबको मेरी तरह बनना भी नहीं है, बट एटलीस्ट किसी एक फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाओ, किसी एक के साथ जो आपके बिल्कुल घर के पास हो, नियरेस्ट टू योर होम या ऑफिस, और वट एवर यू कैन डू फॉर देम, डू दैट. और अगर वो आपके घर के पास वाली है तो आप ज़्यादा कर भी पाएंगी, बार बार जा भी पाएंगी, वो भी आपके साथ ज़्यादा ओपन अप हो पाएंगे. तो कम से कम ये हम सब लोग तो कर ही सकते हैं ना. और रोज़ कुछ उनको कोई आपकी ज़रूरत भी नहीं होती, रोज़ उनको आपकी ज़रूरत भी नहीं होती. बट अगर आप टच में रहोगे, रोज़ गुड मॉर्निंग लिखेंगे, गुड इवनिंग लिखेंगे, आजकल तो टेक्नोलॉजी में सब इजी हो गया हुआ है. और कभी कभार आंटी कोई आपकी दवाई लानी थी, मैं ले आती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ. खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू कर दो. एक फैमिली के साथ तो हम कर ही सकते हैं ना. तो ज़्यादा फैमिलीज नहीं है इंडिया में, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो उनको हैंडल कर सकता है. शायद आपको फैमिली ही ना मिले, हर फैमिली किसी ने ऑलरेडी टेक ओवर की हुई है. ये तो हम कर सकते हैं. बस मैं यही सबको मोटिवेट करता रहता हूँ कि ये तो करो. वॉर मेमोरियल पे प्रांजल के बाद भी नाम आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस फैमिलीज. Sir, everything that you've mentioned is certainly something that not just NCC but the whole society should do. Because जैसा कि आपसे बात करते हुए भी दिख रहा है कि थोड़ी देर की बात में ही with these families you learn a lot. Yes. And these learnings are something which everybody should at least experience once in their life and inculcate them as well. So what do you feel is something that the civilians must definitely learn from the families of the soldiers and the soldiers themselves? एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, सिविलियंस को लर्न करना तो दूर की बात है, सिविलियंस नीड्स टू नो वन दिस थिंग. ये मैंने बात पहले भी कही है. एक कंट्री में अगर एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, एक अच्छा म्यूजिशियन है, ठीक है, पर अगर उसके पास एक अच्छा सोल्जर नहीं है ना, वो कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकता. हाउ मैनी गुड डॉक्टर्स यू हैव,
your country will not exist. How many good teachers you have, how many good, whatever you call, you need a very good soldier to survive. So soldier is the only first priority any country has. आप देख लो आज वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उनकी आर्मी कमज़ोर है, दे आर टेकन बाई समवन एल्स. आपका पैसा, आपका बाकी सब कुछ काम नहीं आता. So the society needs to understand this thing. So the more we give respect to the soldiers, the more children will get attracted towards Indian Army. अब मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो आई शुड बी सेल्फिश फॉर माई सेल्फ ओनली. अगर मैं एक सोल्जर को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसको रिगार्ड दे रहा हूँ, उसको वो सब कुछ दे रहा हूँ जो उसको चाहिए, तो अच्छे लोग आएंगे ना मुझे प्रोटेक्ट करने. इन द एंड हु आर दे प्रोटेक्टिंग? दे आर प्रोटेक्टिंग मी. मुझे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो सोसाइटी को यही एक चीज़ समझनी है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें एक अच्छी आर्मी चाहिए. अच्छी आर्मी के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए जो आर्मी में आए. अच्छे लोग आर्मी में तभी आएंगे जब हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो भी ये बाकी सारी हैं, आसाम राइफल्स, जब हम इनको एक अच्छा सोसाइटी में स्टेटस दे पाएंगे, तभी तो लोग आएंगे. Yes, sir. अदरवाइज आप भी नहीं आओगे. So the soldier needs to be treated at a very high dignity and high respect, not only in words, in the deeds. जैसे अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि सोल्जर के पास सीट नहीं है, दे दो ना उसको. वो पता नहीं 7-8 महीने इंडक्शन के बाद नीचे उतर के ट्रेन में बैठा होगा. आप समझ रहे हो? Yes, sir. तो दे दो सीट. अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हो, अगर वहाँ कोई फौजी कपल आता है या कुछ आता है, अगर उनके पास टिकट नहीं है, आप अपनी दे दो. आप अगले वीकेंड पे भी टिकट फिल्म देखने जा सकते हो, शायद अगला वीकेंड उसके पास ना हो. अगर आप खाना खा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, कोई सोल्जर ही आता है, उसी को सीट दे दो. वो आपसे मांगेगा नहीं, और वो पहचान लिया जाता सोल्जर विद हिज टर्न आउट, विद हिज बॉडी लैंग्वेज. वन कैन मेक आउट कि ही इज ए सोल्जर. दे दो ना उसको सीट. इतना क्या है. और अगर आप किसी ऑफिस में हैं, कोई अगर सोल्जर आपके पास अपनी फाइल लेके आता है, अपना कुछ काम लेके आता है, उसको ज़्यादा चक्कर मत लगाओ, क्योंकि साल में उसको ना लगभग 1 ही महीने की छुट्टी मिलती है. लगभग वो 1 महीने में भी 3-4 दिन उसको घर आने में लगते हैं, 3-4 दिन उसको घर वापस जाने में ही लगते हैं. पीछे बचे कितने? लगभग 20-25 दिन. वो 20-25 दिनों में लगभग पिछले 11 महीनों में उसकी फैमिली में 4-5 लोगों की डेथ भी हो गई होती है, 4-5 लोग पैदा हुए होते हैं, वो उन सबके घर जाता है. पीछे कितने बचे? 5-6 दिन. ये 15 दिन. 15 दिन में फिर वो ये सरकारी काम भी सारे करता है, फैमिली के साथ भी सारे काम करता है, अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी भी सारे देखता है, अपनी ज़मीन भी देखता है, अपना सब कुछ देखता है. वो प्रैक्टिकली अपनी वाइफ, बच्चों, माता पिता के साथ हार्डली 1 हफ्ता ही रहता है. तो उसको ज़्यादा दफ्तर के चक्कर, ये तो एज ए सोसाइटी हम कर सकते हैं ना. अगर वो लाइन में लगा, उसी को बोल दो सर आप पहले आके ना घर जल्दी चले जाओ, आप छुट्टी पे आए हो, आप चले जाओ. फिर वो दोबारा ना जाने इंडक्ट होने कहाँ पे जा रहा है, उसके बाद वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, हमें नहीं पता. तो सोसाइटी हैज़ ए वेरी लार्ज रोल टू प्ले इन दिस, जो हम कर सकते हैं. मैं अगर बैंक में हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ द सोल्जर. मैं अगर किसी और डिपार्टमेंट में हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ द सोल्जर. उसको ज़्यादा चक्कर मत लगाओ ना. फटाफट उसका अगर कुछ 19-20 कम भी है, कर दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके पास मूवी की टिकट है, दे दो ना उसको. ट्रेन की टिकट है, उसको भी बिठाओ ना. आपका भी जाना ज़रूरी है, बट गिव हिम दैट priority, give him that respect. So, sir, we come to the last segment of our podcast, which is the rapid fire round, where I'll ask you a question and you have to answer with the first thing that comes to your mind. Sure. Okay. So, sir, one word that describes your NCC experience. Wonderful. Okay, sir. An NCC activity that you're quite fond of. Social work. Okay, sir. The most inspiring quality of a soldier's family. Brave. What does patriotism mean to you in one word? Country first. Okay, sir. So then, what is the first thing that comes to your mind when you hear the word sacrifice? A soldier's family. Yes. Okay, sir. And sir, if you could meet one war hero from our history, then who would that be? Only one.
Sorry to make it hard, sir, but No, no, yes, no, just no. one. Then of course I would like to meet Captain Sanjay Arya, my classmate, my friend, hero of Operation Khokhri, Sierra Leone, Bar to Sena Medal, 58GR. Good confidence. So that brings us to the end of our podcast. It was lovely having you with us. Thank you, Vrinda, and I hope next time I see you in different uniform. Hopefully. Thank you for being here. Thank you everyone for joining. Jai Hind.